Good morning students, I'm Asha Gautam, your English teacher. Today we are going to start new chapter of our syllabus. Do you want to play football? Series first. So this is first part of this chapter. But before that, here is an activity. Work in pairs and look at these words. Some are words that have two meanings, one of which related to sport. यहाँ बॉक्स दिए हैं और बॉक्स के अंदर वर्ड्स लिखे हैं जिनकी टू मीनिंग्स है. फर्स्ट मीनिंग जनरल सेंस में है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं और सेकंड मीनिंग उसका स्पोर्ट्स रिलेट करता है. सो लेट्स सी. फर्स्ट वर्ड इज बाउल. अ बाउल इज ए राउंड कंटेनर विद ए वाइड अनकवर्ड टॉप. सम काइंड्स ऑफ बाउल आर used for example for serving or eating food from or in cooking. And another meaning of bowl which is related to sport is bowl means to throw a ball down a lane to knock over pins for sport. An example of bowl is to knock down 5 or 10 pins with a ball. Okay. Next word is row. A row is a straight line of something like a row of penguins at the zoo, or several students are pushing school desks and chairs into neat rows. Another meaning of row is the activity of moving a boat through water using oars either for pleasure or as a sport. Clear? Next word, basket. A basket, a container made of thin pieces of plastics, wire or wood woven together used to carry things or put things in. And next meaning of basket, a net with a hole at the bottom attached to a metal ring through which the ball is thrown in basketball. Clear? Next word, goal. Goal something that you hope to achieve in the future. Like your goal as a parent is to help your child become an independent adult. Or another meaning, goal the area between toe posts where the ball must go in order to score in games such as football or hockey. Clear? Next is strike. Strike a period of time when a group of workers deliberately stop working because of a disagreement about pay, working conditions, etc. And another meaning, strike an attempt to hit the ball in baseball that fails or a ball that is thrown to the batter in the correct area. Clear? Next is racket. A racket is a sports implement. It is used for striking a ball or shuttlecock in games such as tennis and badminton. Another meaning of racket is a loud noise or clamor, especially of a disturbing or confusing kind, like the traffic made a terrible racket in the street below. Okay. Last is target. Target something that you are trying to achieve, such as a total, an amount, or a time. Like he missed the target by 2 inches. Another meaning, target an object, person, or place that is deliberately chosen to be attacked. Like cars without security devices are easy target to the thief. I hope you have understood these words well now. Okay. Now coming to the chapter, Monica dreams of being in a football team. Monica dreams करती है कि वो उसके पास भी फुटबॉल टीम हो एक. But when she suggests it to the game teacher, she is stunned to hear that it's not really a game for girls. बट जब उसने अपनी स्पोर्ट टीचर को बताया कि वो एक फुटबॉल टीम चाहती है या फुटबॉल टीम में पार्ट लेना चाहती है या फुटबॉल टीम खेलना चाहती है, तो वो ये सुन के स्टंट रह गई. स्टंट मीन्स हैरान रह गई कि उसकी टीचर ने बोला इट्स नॉट रियली अ गेम फॉर गर्ल्स, ये गर्ल्स का गेम नहीं है. बट मोनिका इज नॉट अ पर्सन हु गिव्स अप इजिली. लेकिन मोनिका वो पर्सन नहीं है जो इतनी जल्दी इजिली गिव अप कर दे कि मैम ने कहा कि गेम नहीं है गर्ल का और मान जाए. Section 1, Football. Monica murmured. Murmured means cackle, बड़बड़ाना. Monica बड़बड़ाते हुए कहती है football. Her big brown eyes shone as she gazed into the distance.
गेज्ड मीन्स ग्लोट, घूरना। जो उसकी बड़ी आंखें हैं वो ऐसे शाइन कर रही हैं, ऐसे बाहर बाहर की तरह बड़ी होकर शाइन कर रही हैं, जैसे कि वो कुछ डिस्टेंस में घूर रही हो, कुछ देख रही हो। निबलिंग एट हर थम एज दो इट वर हर फेवरेट चॉकलेट बार। निबलिंग मीन्स बाइट ऑफ। वो अपने थम को कुछ बाइट ऑफ करती हुई, कुतरती हुई कुछ सोच रही है और उसको ऐसे थम को सहला रही है जैसे कि वो उसकी चॉकलेट, फेवरेट चॉकलेट हो। In this picture, two girls are sitting. One is Nidhi and the other is Monica. Okay? Football. Nidhi, her best friend look puzzled. जो निधि मोनिका की बेस्ट फ्रेंड है वो बोलती है फुटबॉल और उसको हैरानी के साथ देखती है। वाई कांट वी हैव अ फुटबॉल टीम, मोनिका सैड ड्रीमली। मोनिका ने कहा, उसको ढंग एक अच्छे तरह से बोला, क्यों हमारे पास क्यों एक फुटबॉल टीम नहीं हो सकती। अ फुटबॉल टीम, यू आर मैड, निधि वॉज अबाउट टू से। निधि ये बोलने ही वाली थी, बट शी स्टॉप्ड बिकॉज शी न्यू इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन वो रुक गई क्योंकि उसको पता था कि अगर मोनिका को मना करूंगी तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। नो वन कुड स्टॉप मोनिका व्हेन शी गॉट समथिंग इन टू हर हेड। क्योंकि मोनिका को रोकना मुश्किल है, अगर वो अपने कुछ मन में ठान लेती है कि उसे कुछ करना है तो उसको रोकना उससे मुश्किल है। शी वुड गो ऑन एंड ऑन टिल एवरीवन वाज फॉर टू गिवन। वो तब तक वो काम करती रहती है जब तक सब उसे मना करते रहते, नहीं कर सकती तुम, लेकिन वो तब तक करती रहती जब तक वो पूरा उसको फिनिश नहीं कर लेती, वो नहीं मानती। एंड व्हेन शी रियली थॉट अबाउट इट, निधि टू रियलाइज दैट देयर वाज नथिंग क्रेजी अबाउट द आइडिया। जब निधि ने भी इसको सोचा इसके बारे में तो उसको भी लगा कि ये आइडिया कोई क्रेजी नहीं है। बिकॉज वाई शुड नॉट दे हैव फुटबॉल टीम। उसने सोचा हमारे पास भी फुटबॉल टीम क्यों नहीं है। वाई कुडंट गर्ल्स प्ले फुटबॉल, गर्ल्स फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकती। बट बिफोर निधि कुड शेयर हर ओपिनियन, मोनिका हैड ऑलरेडी जम्प्ड अप। जैसे ही निधि अपने ओपिनियन शेयर करती मोनिका से, इससे पहले मोनिका खड़ी हो गई, जंप करके एकदम से खड़ी हो गई। आई एम गोइंग टू आस्क मिस सैन अबाउट इट, शी क्राइड। उसने रोते हुए कहा कि मैं मिस सैन से इसके बारे में पूछने जा रही हूँ। मिस सैन जो है उनकी वो गेम टीचर है, तो वो उनके पास खड़ी होकर जंप करके एकदम से खड़ी हुई और उनके पास पूछने जा रही है कि हमारे पास एक फुटबॉल टीम क्यों नहीं है। ओके, वेट, निधि सैड, लेट्स डिस्कस इट। निधि ने बोला रुको अभी, वेट करो, हम डिस्कस करते हैं। बट मोनिका वॉज ऑलरेडी रेसिंग अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द गेम टीचर। लेकिन मोनिका वो उसको रोकती, इससे पहले मोनिका भाग के जो गेम टीचर थी उनके पास जा चुकी थी। क्रेजी, निधि शुक हर हेड देन फॉलोड एज फास्ट एज शी कुड। निधि ने अपना सर हिलाया, उसको क्रेजी बोला और वो भी उसके पीछे जो भागी जितना वो भाग सकती थी ताकि वो भी उसके पास पहुंच सके। दिस वॉज वन कन्वर्सेशन शी डिडंट वॉन्ट टू मिस। वो भी जो कन्वर्सेशन होने वाला था मोनिका और मैम के बीच में, उसको मिस नहीं करना चाहती थी। शी केम टू हॉल्ट पेंटिंग, हॉल्ट मीन्स पॉज, पेंटिंग मीन्स हाफते हुए, उसने वहाँ पॉज लिया एक हाफते हुए। It looked like Monica had just popped the question because on Miss Sane's face was a mixture of surprise and amusement. उसे देख के ऐसा लग रहा था कि मोनिका अपना क्वेश्चन पूछ चुकी है, क्योंकि जो मिस सेन है उनका फेस जो है मिक्सचर हो गया है, मिक्सचर से भर गया है, क्योंकि वो सरप्राइज भी लग गया क्वेश्चन सुन के मोनिका का और खुशी भी हुई है। दे एडोर देयर गेम्स टीचर, वो अपनी गेम्स टीचर को बहुत एडोर करती थी, पसंद करती थी। Well, said Miss Sen, running her fingers through her short curly hair. मिस सेन ने कहा वेल ठीक है, अपने जो फिंगर्स है उनको, अपने हेयर जो उनके शॉर्ट करली हेयर थे उसमें अपनी फिंगर्स घुमाते हुए हेयर में कहा, आई रियली डोंट सी वाई यू कांट हैव इट। मैं ये नहीं समझ पा रही कि आपके पास क्यों नहीं हो सकती एक फुटबॉल टीम। ऑफ कोर्स मैम, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर दैट्स देयर अ लॉ अगेंस्ट गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल। वास्तव मैम ऐसा कहीं भी लॉ में नहीं लिखा, कहीं कानून में नहीं लिखा कि गर्ल्स जो है फुटबॉल नहीं खेल सकती। मोनिका पॉनीटेल शुक एज शी स्टार्टेड हर केस वेमेंटली, मीन्स एक्सप्रेस हर ओपिनियन स्ट्रांगली। जो मोनिका की पॉनीटेल थी वो इस तरह से रेज होकर दिख रही थी जैसे उसने अपना ओपिनियन है वो स्ट्रांगली मैम के आगे रख दिया है सामने। मिस सेन लाफ्ड लाउडली, मिस सेन बहुत तेज हंसने लगी मोनिका की ये बात सुन के। टेल यू व्हाट शी सेड, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको बताती हूँ। आई विल आस्क द प्रिंसिपल बट वी विल हैव टू गेट अ स्पेशल कोच। ठीक है मैं प्रिंसिपल से इस बारे में बात करूँगी, लेकिन हमें इसके लिए एक स्पेशल कोच चाहिए होगा।
आई एम अफ्रेड आई कांट टीच यू फुटबॉल, मुझे डर है क्योंकि मैं शायद आपको फुटबॉल नहीं सिखा पाऊंगी, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल कोच चाहिए होगा और मुझे उसके लिए प्रिंसिपल मैम से बात करनी होगी। आई कांट वेट टिल द गेम्स पीरियड, मोनिका विस्पर टू निधि द नेक्स्ट डे। जो मोनिका है नेक्स्ट डे निधि की कान में विस्पर कर रही है कि वो वेट नहीं कर पा रही कब गेम पीरियड आएगा। अर्निंग अ स्टैंड फ्रॉम मिसेस मनी देयर मैथ्स टीचर, मे बी द प्रिंसी लाइक्स द आइडिया। प्रिंसी मीन्स प्रिंसिपल। जो उनकी मैथ टीचर है वो विस्पर कर रही है, बातें कर रही हैं उसके, तो उन्होंने उसकी विस्परिंग सुन ली है मैथ टीचर ने। और अर्निंग अ स्टैम्प फ्रॉम मीन्स उनको घूरते हुए एक्सप्रेशन दिया है कि वो बातें कर रही है क्लास में। मे बी द प्रिंसी लाइक्स द आइडिया, और वो इस तरह की बातें कर रही है कि प्रिंसिपल को मिस सैन का आइडिया पसंद आया या नहीं आया, वो इस तरह की बातें क्लास में कर रही हैं। एट लास्ट द गेम्स क्लास अराइव, लास्ट में गेम्स का पीरियड आ गया। Even Nidhi had a hard time keeping up with Monica as she sped towards the game field. निधि भी वेट नहीं कर पा रही थी कि कब हम मैम के पास जाएंगे और पूछ के आएंगे क्या हुआ, तो जल्दी से भाग के दोनों गई गेम पीरियड, वहाँ पे गेम फील्ड में जल्दी से भाग के गए। कॉन मिस सैन बिफोर शी कुड गेट टू डीप इनटू हर ड्यूटीज, मिसेस सैन अपनी ड्यूटीज में चली जाती, इससे पहले उन्होंने मिस सैन से पूछ लिया। बट द यंग टीचर शुक हर हेड सैडली, लेकिन जो उनकी टीचर थी मिस सैन, उन्होंने अपना सर दुखी में अपना सर को हिलाते हुए बोला, आई एम सॉरी मोनिका, द प्रिंसिपल सेज इट वॉन्ट बी पॉसिबल। मोनिका सॉरी, प्रिंसिपल ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इट विल मीन प्रिपेयरिंग अ न्यू फील्ड, हायरिंग अ कोच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम फुटबॉल टीम बनाएंगे तो उसका मतलब है कि हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा न्यू फील्ड को, एक कोच हायर करना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मनी विल हैव टू बी स्पेंड, बहुत सारा इस पर हमें रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। ऑल्सो शी सेज इट्स नॉट रियली अ गेम फॉर गर्ल्स, आई एम रियली सॉरी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो गेम है गर्ल्स के लिए नहीं है, मुझे इसके लिए माफ़ करना। सेक्शन 2, मोनिका वॉज स्टंड। स्टंड मीन्स शॉक्ड, मोनिका शॉक्ड हो गई सुन के कि प्रिंसिपल ने मना कर दिया उनको फुटबॉल के लिए, और ये बोल दिया कि वो गर्ल का गेम नहीं है, बॉयज़ के लिए होता है फुटबॉल गेम। मैम, मोनिका बर्स्ट आउट वंस शी हैड रिकवर्ड हर विट्स। मोनिका सिर्फ मैम ही बोल पाई और उससे पहले वो बर्स्ट हो गई, रो पड़ी, और वो आगे कुछ कहती इससे पहले, बट मिस सेन वॉज ऑलरेडी हरिंग टूवर्ड्स वन ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट्स। वो मोनिका मैम को उसके आगे कुछ कहती, मैम जो थी मिस सेन वो आगे बढ़ चुकी थी बैडमिंटन कोर्ट के पास। एंड वेन मोनिका ट्राई टू फॉलो, निधि पुल्ड हर बैक। जैसे ही मोनिका ने मैम को फॉलो करना चाहा, निधि ने उसको वापस खींच लिया अपनी तरफ बैक। फॉरगेट इट शी सेड, निधि ने बोला भूल जाओ। मिस सैन कांट डू एनीथिंग, मिस सैन कुछ भी नहीं कर सकती। यू नो इट्स द प्रिंसी हु डिसाइड एवरीथिंग, तुम जानती हो ये प्रिंसिपल है जो सबको डिसाइड करती हैं। ओह, मोनिका सेड जर्किंग हर आर्म आउट ऑफ द निधिज होल्ड एंड स्टॉपिंग ऑफ इन अ हफ। स्टॉम्पिंग ऑफ इन अ हफ मीन्स वॉकिंग अवे एंग्रीली। मोनिका ने हफ कहा और अपनी जो आर्म्स थी निधि से छुड़ाते हुए और गुस्से में वॉक करते हुए आगे बढ़ गई। But a few minutes later, she was dashing about the basketball field, leaping and tossing goals merrily into the basket. एक कुछ टाइम बाद ही वो बास्केटबॉल फील्ड में चली गई, अपनी बॉल को लीपिंग करने लगी, उछालने लगी, टोस करने लगी गोल की तरफ, और बहुत खुश होकर उसको बास्केट में डालने लगी। इट डिडंट मीन शी हैड फॉरगॉटन और गिवन अप, इसका मतलब ये नहीं था कि वो भूल गई थी कि उसको फुटबॉल की टीम बनानी है और उसने गिव अप कर दिया था कि अब मैं छोड़ चुकी हूँ, नहीं बनाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं था। एज निधि डिस्कवर्ड लेटर, when after school she and Monica went for their evening run in the park. ये निधि ने डिस्कवर किया तब कि वो भूली नहीं थी, जब वो मोनिका के साथ पार्क में गई थी, जैसे वो रोज़ जाते हैं इवनिंग वॉक में, तो पार्क में गई तब उसने पता लगाया। दे हैपन टू लिव इन द सेम नेबरहुड विच मेड इट ईजी फॉर दैम टू मीट आफ्टर स्कूल। वो पड़ोस में ही रहते थे, नेबरहुड वे में रहते थे, इसलिए उनके लिए आसान था कि स्कूल के बाद भी वो मिलती थी पार्क में और डिस्कस करती थी। नॉट अ गेम फॉर गर्ल्स, मोनिका स्नॉटेड। स्नॉटेड मीन चग। मोनिका ने अपनी नाक को थोड़ा सुकुड़ते बोला, क्या ये गेम गर्ल्स के लिए नहीं है? गर्ल्स कैन प्ले हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, बट नॉट फुटबॉल। गर्ल्स हॉकी खेल सकती हैं, क्रिकेट खेल सकती हैं, वॉलीबॉल और टेनिस खेल सकती हैं, बट फुटबॉल नहीं खेल सकती। एंड वी आर गिवन सो मैनी लेक्चर्स ऑन द इक्वालिटी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, और हम इतने सारे लेक्चर्स देते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ बराबर हैं, इक्वल हैं, फिर ये पार्शलिटी क्यों, वाई? इट डज सीम हॉरिबली अनफेयर, निधि सैड। निधि ने कहा ये तो बहुत बड़ा हॉरिबली अनफेयर है, पार्शलिटी है, बट वॉट कैन वी डू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ऑफकोर्स वी कैन डू समथिंग, मोनिकाज माउथ सेट
determinedly. मोनिका ने कॉन्फिडेंट के साथ कहा, ऑफ कोर्स हम कुछ कर सकते हैं. व्हाट? निधि ने कहा, क्या कर सकते हैं? प्ले फुटबॉल. मोनिका रिप्लाइड. मोनिका ने कहा, फुटबॉल खेल सकते हैं. शी ग्लेयर्ड एट निधि एज इफ डेयरिंग हर टू डिसएग्री. उसकी आंखें ऐसे ग्लेयर कर रही थी, चमक रही थी कि देख रही थी कि निधि उसको डिसएग्री तो नहीं करने वाली, मना तो नहीं करने वाली. फर्स्ट मोनिका राउंडेड अप अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन दी कॉलोनी. पहले पहले तो जो मोनिका है उसको ग्रुप बनाना है गर्ल्स का अपनी कॉलोनी से. देन शी परसुएडेड दैम दैट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम टू लर्न टू प्ले फुटबॉल. उसके बाद उन्हें परसुएडेड करना है, उनको इंकरेज करना है कि जो फुटबॉल है वो गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खेलना उसे. बट हु इज़ गोइंग टू टीच अस? निधि आस. लेकिन निधि ने कहा, लेकिन हमें सिखाएगा कौन? As they were walking away after having recruited the last member of their team. Recruited means persuaded to join. अब उनका लास्ट मेंबर बचा था टीम में ज्वाइन करने के लिए. मोनिका थॉट हार्ड. आई नो, शी सैड. मोनिका सोच रही थी कुछ, उसके बाद बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं कौन सिखाएगा. दोज गाइज यू नो, सुमित एंड अनुज एंड द रेस्ट. तुम जानते हो उन गाइज को, सुमित, अनुज और उनके साथ जो और भी होते हैं. दे प्ले फुटबॉल रेगुलरली इन द पार्क. वो रोज फुटबॉल खेलते हैं पार्क में. वी कैन आस्क देम टू लेट अस ज्वाइन देयर गेम. हम उनसे पूछ सकते हैं कि वो हमें अपने गेम में ज्वाइन कर सकते हैं. यू थिंक दे विल एग्री? निधि आस्क incredulously. incredulously मीन्स इन अ डिसबिलीविंग वे. निधि ने अविश्वास करते हुए कहा, तुम्हें लगता है वो एग्री करेंगे हमें सिखाने के लिए? यू नो वॉट दैट सुमित इज लाइक. तुम जानते हो सुमित कैसा है? वी कैन ट्राई, मोनिका रिप्लाइड. मोनिका ने कहा, कोई बात नहीं, हम एक ट्राई कर सकते हैं. So as we can see, the chapter's end is not proper, but here we see Monica has made her mind that no matter what, she will make a football team for girls with the help of two boys. Well, no sports or game or anything is limited to one gender. That only girls should do this and only boys can do that. This we all must understand, right? So here this chapter ends. I hope you have understood it well. Thank you.